Yes, ma'am. Yes. What you can see, you can Social. right, you cannot see my PowerPoint. PowerPoint is visible, ma'am. Wow, awesome. Yeah. Now I think it's connected. You can see, right? Uh, Yes. okay. Last class we were having a certain point Ma'am, which chala was gaya फिर से. Sorry to array. interrupt. It's okay, it's okay. Ma'am, now it Yes, हाँ is yeah. yes, visible. ma'am. Now visible. It has come. लोड हो रहा है मैम अभी. Yeah, let it load. For me also it's showing loading only. Hey Bhagwan. Yes, ma'am. PowerPoint is visible. Hello. Yes, Hello. ma'am. Yes, Yeah, ma'am. I just logged off. I don't know how I logged off from the laptop. I'm still trying to connect it, so let it connect. Meanwhile, I'll continue over the phone, okay? Um, I hope it will come. Yeah, it will come. Okay, so last class we were talking about the nature of social science, which was the first point that we have in our unit. Okay, so first point that we said was it is a combination of various disciplines. Okay, we all agree that social science is a combination of different disciplines, right? Sociology, anthropology, history, economics, etc. So this we have seen already. Then it is a study of human relationship. Yeah, so because it is social sciences and it is not natural sciences, we know that it is the relationship between, it is the study of relationship, human relationship between in the society. Okay, the next is a study of the next nature is it is the study of man's development through ages. Okay, so when we are actually dealing with learning of history, we are actually seeing all the anthropological studies, we are actually seeing in social sciences how the human beings have evolved over the years, how there has been some mutations or some changes, and how they have become the present day human beings. Okay, and similarly, man's development as a civilization also we see in history. Okay, like how was he during the Stone Age, फिर उसके बाद
how was he during the next age, and then how the weapons have developed, then how we had kings ruling us, and then how we have actually come into this era where we have democratic governments ruling us. Okay, so actually social sciences study, its nature is that it is a study of man's development through ages. Okay, then it is a realistic course of study. Why it's a realistic course of study? Because it is having its own body of knowledge which is going to support us in learning. Okay, so if we are actually learning about history, geography, we have a body of knowledge, we have reference books, we have so many literature which is available to support our reading and to support enrich our knowledge. Okay, hence it's a realistic course of study. Then the next nature is it forms an important part of core curriculum. Okay, why it forms an important part of the core curriculum? It is both at the higher education level and at the school level. Okay, social sciences form part of the core curriculum in the school curriculum also, and in the higher education also. In the school curriculum, it is in the form of subjects. Okay, it is in form of subjects wherein you have topics which are limited. हिस्ट्री के 5 टॉपिक्स हो गए, ज्योग्राफी के 5 टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर हो गए, सिविक्स के 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हो गए. तो वी हैव कंसाइज्ड इट इन फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वी लर्न इट इन द स्कूल. सो इट बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, इजंट इट? जैसे हम मैथ, साइंस, मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सीखते हैं, वैसे हम सोशल साइंस को भी स्कूल लेवल पे सीखते हैं. वी ऑल्सो लर्न इट एट द यूनिवर्सिटी लेवल और एट द हायर एजुकेशन लेवल, इजंट इट? So there we have an in-depth study of social sciences. अगर किसी ने एंथ्रोपोलॉजी में BSc करने का या BA करने का सोचा है तो they are going to study in depth. अगर किसी ने हिस्ट्री पे BA करने का सोचा है तो they will be in depth studying about that specific subdiscipline of social science. Okay, hence we can say now when a person is say doing BA in history, उसके subsidiary subjects भी तो होंगे. वो इंग्लिश भी पढ़ेगा साथ में, या हो सकता है उसने ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस लिया है. ठीक है, तो उसका पूरा करिकुलम क्या होगा? इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, मे बी इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री. लेकिन उसको स्पेशलाइज किस में करना है? BA इन स्पेशलाइजेशन क्या करना है? हिस्ट्री. ठीक है, तो उसका पूरा करिकुलम जो है वो 4-5 सब्जेक्ट से बनेगा, लेकिन उस करिकुलम का एक पार्ट हिस्ट्री भी है, क्योंकि उसको हिस्ट्री में BA करना है. इसीलिए वी कैन से दैट सोशल साइंसेस or the sub-disciplines of social sciences form the core curriculum at both school level also and at the higher education level also. Okay, then the next nature is aims at, social sciences aim at preparing the learner for wholesome social living. Okay, होलसम लिविंग के लिए हम लोग उनको हेल्प करते हैं. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर एक्चुअली टीचिंग देम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, वी आर हेल्पिंग देम टू लर्न, we are actually helping them to understand the different perspectives of life. Okay, जैसे हिस्ट्री से आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि पास्ट में जो गलतियां की थी वो हम फ्यूचर में ना करें और प्रेजेंट में ना करें. अगर पहले वॉर हुआ था तो इस बार हम वॉर ना करें. ठीक है, सो दैट इज अवर एम. तो उसी तरीके से ज्योग्राफी है तो डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, वहां पे कैसा लिविंग होता है, लोग वहां पे कैसे अर्न करते हैं, वो सब हम सीखते हैं. इकोनॉमिक्स है तो हम लोग इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेस रिलेटेड नॉलेज है वो सब पढ़ाते हैं. अब एक इंसान को जीने के लिए हर तरीके का नॉलेज तो जरूरी है ना. पुरानी जो गलतियां हुई है उससे आगे गलतियां ना हो और हम लोग पुरानी गलतियां दोहराए नहीं, वो भी जरूरी है. रिसोर्सेस हमारे पास क्या अवेलेबल है वो जानना भी जरूरी है. पैसे को कैसे ठीक से हैंडल करना है, बैंक को कैसे यूज कर सकते हैं पैसे का यूज करने के लिए, ये जानना भी जरूरी है. लॉस क्या है कंट्री के वो जानना भी जरूरी है. अलग अलग प्लेसेस में क्या स्टेपल डाइट है, क्या कल्चर है, क्या फूड हैबिट्स है, वो सब जानना भी जरूरी है.
ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उनको सोशल साइंसेस के थ्रू पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पे, और हायर एजुकेशन लेवल पे उसको इन डेप्थ फॉर्म में वो लोग जो सब्जेक्ट लेते हैं उस फॉर्म में पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्कूल लेवल पे उनको सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं तो हम उनको एक होलसम लिविंग के लिए डेवलप करते हैं। ठीक है। तो दीज आर द 6 नेचर्स ऑफ social sciences. Now coming on to the philosophy of social sciences. Okay. I think I'm able to join with the laptop so that I can show you the PPT. Till then, let us focus on what are the basic philosophies. First, I'm going to list out the philosophies that I want that we learn in this session regarding the social sciences. Okay. First is positivism. Yeah, I think I've joined in. Just a moment, okay? Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, you are not audible. How about it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, You are audible. ma'am. तो अभी तक मैंने जो भी बोला वो कुछ नहीं सुना तुम लोगों ने फिलॉसफी के बारे में? No, ma'am. नहीं, कहाँ नहीं, तक ma'am. सुना वो बोलो, कहाँ तक सुना वो बोलो। मैम बस आपने जो One first word बोला, है positivism. बस वही. अच्छा, वो सिर्फ list मैंने out जो किया लिस्ट आपने, आउट बस किया वही. पॉजिटिविज्म बोला उधर तक सुना। ठीक है, ठीक है। आई डू इट Yes, अगेन। ma'am. Ma'am, अभी सुन रहा है ना ma'am. सबको? हाँ बोलो। Ma'am, students are waiting in a lobby. Please do add them. इज इट? बट Yes, ma'am. ये Message वाला I had. तो जो ज्योत्सना मैम ने सेट किया वो है ना? आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग न्यू, सो हाउ इज इट दैट No दे आर idea, वेटिंग ma'am. इन But द group में लॉबी? message आया है कि yes, ma'am. Really? I don't have anyone seen in the lobby.
Can you just share this link again and tell them to rejoin? Okay, ma'am. Wait. Okay, Yes? ma'am. अभी मैं सुनाई दे रही हूँ ना, और मेरा पीपीटी भी दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ Yes, मैम। ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो वी गो ऑन, ठीक है। अब फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस हमें पढ़ने की जरूरत क्या थी, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली सोशल साइंस क्या है, ये जानना कि सोसाइटी में किस तरीके से, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया था जिसमें, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, सोशल साइंस जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी है, राइट। तो जब एंशियंट टाइम्स था, 15th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, वो जब टाइम था, तब सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन ग्रो नहीं हुआ था। तो अगर सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन ग्रो होना है तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पहले कुछ थॉट्स होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए जो डिफरेंट फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग थिंकिंग स्टाइल से डिफरेंट सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स डेवलप किए और डिफरेंट सोशल साइंस प्रिंसिपल्स डेवलप किए, ठीक है। तो ये जो हम फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोशल साइंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? उसमें सोशल प्रोसेसेस देखना कि कौन किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कौन किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, ये सब हम लोग सीखते हैं सोशल साइंस में, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि सोशल साइंस इज ऑल्सो हैविंग एन अनसेटल्ड स्टेटस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, ठीक है। जैसे साइंस है, उसमें अगर कुछ एक्सपेरिमेंट से कुछ प्रूव हो जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए एक प्रिंसिपल या लॉ बन जाता है साइंस का, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस में ऐसा है कि सपोज यूएसए में किसी ने कुछ ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर एक थ्योरी लिखी, तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में राइट हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का अपना कल्चरल बैकग्राउंड है, इंडिया का अपना वे ऑफ लिविंग है, सोसाइटी का एक सेटअप है, ठीक है। इसीलिए तो हमें जो लॉजिक देना होता है सोशल साइंस के लॉज के लिए या सोशल साइंस के थ्योरीज के लिए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो बहुत ज्यादा अनसेटल्ड है, ठीक है। क्योंकि एक जगह जो चीजें हमको दिखती है बिहेवियर में वो दूसरी जगह शायद ट्रू ना हो, इसीलिए सोशल साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगता है कोई भी सोशल थ्योरी बनाने में, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ फिलोसोफर्स ने ट्राई किया कि सोशल साइंस को एज अ डिसिप्लिन ग्रो करे, और उन्होंने ये जो 6 philosophies है वो यूज किए हैं, ओके। वी विल सी देम वन बाय वन, ओके। लेट अस सी व्हाट इज पॉजिटिविज्म, ठीक है। Positivism is the scientific study of social world. Okay, what does a scientific study mean? Can anyone tell me? Ma'am, which Ma'am, is it is the based on scientific? experiment. Based on Based on experimentations. right? अब सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट क्या होगा? ब्यूरेट, पिपेट और लेबोरेटरी में तो नहीं होगा। सोशल साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे कि लोगों को ऑब्जर्व करेंगे हम कि वो कैसे बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, फिर दूसरे सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करते हैं, फिर पर्टिकुलर रिलेशनशिप, फादर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को मिला के ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं फिर हम इसको थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म ये मानता है कि वैलिड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज वैलिड नॉलेज मीन? वैलिड नॉलेज मीन्स कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हर परिस्थिति में, ऑलमोस्ट हर परिस्थिति में सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक ऐसा थ्योरी बनाया, ऐसा कोई थ्योरी है नहीं, लेकिन अगर हमने ऐसा थ्योरी बनाया कि कोई इंसान अगर फिजिकली अनवेल है, अगर वो बीमार है, ठीक है, तो वो सबके साथ चिढ़ के बिहेव करेगा, उसकी जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो किसी के साथ अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये सपोज एक थ्योरी है, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो अच्छा बिहेव करेगा जो लोग उसकी केयर करते हैं, ठीक है। सपोज ये है एक प्रिंसिपल है, सोशल प्रिंसिपल है सपोज, ठीक है, और ये है भी, हम सब मानते भी है और हमने ये देखा भी है, इसको हमने कभी थ्योरी नहीं बनाया है, दिस इज अ सोशल फैक्ट, ओके। तो अगर सपोज वी हैव दिस नॉलेज एंड अगर हमने ये
अलग अलग, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट में सेम चीज को ऑब्जर्व किया तो हम लोग इसको एक थ्योरी बना देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारे अफ्रीका में भी देखा, एशिया में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमने देखा कि यही चीज होती है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो अपने सारे ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ वो चिढ़ के बात करता है या एंग्शियसली बात करता है। ठीक है, सपोज दिस इज अ सोशल लॉ और सोशल प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश। अब हम लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर डेटा कलेक्ट किया, राइट, और फिर हमने इसको थ्योरी बनाया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविज्म जो फिलॉसफी है वो ऐसा मानता है कि कोई भी चीज है उसके पीछे रीजनिंग होना चाहिए या उसके पीछे क्या बोलते हैं, रिसर्च सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू सी द पॉइंट्स, इट इज रिटन साइंस इज द ओनली वैलिड नॉलेज। पॉजिटिविज्म एक्चुअली इज अ फिलॉसफी दैट द साइंटिस्ट यूज्ड टू यूज। लेकिन सोशल साइंस के डेवलपमेंट में भी पॉजिटिविज्म बहुत काम आया है। जहां पे हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं अलग अलग प्लेसेस के और हम थ्योरीज को बोलना चाहते हैं, वहां पे पॉजिटिविज्म यूज होता है, वहां पे पॉजिटिविस्ट वे ऑफ थिंकिंग यूज होता है। ठीक है, then philosophy does not possess, the positivism philosophy does not possess a method different from science। ठीक है, चाहे पॉजिटिविज्म को, पॉजिटिविज्म क्या है समझ में आ गया ना, कि हम लोग पहले फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, या तो फिर एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करेंगे या तो फिर ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करेंगे। अगर साइंस डिसिप्लिन है तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करेंगे फैक्ट्स को या फिर डेटा को, और अगर सोशल साइंस है तो हम ऑब्जर्वेशन से गैदर करेंगे और फिर उसको एक वैलिड नॉलेज बनाएंगे। दैट इज पॉजिटिविज्म, यानी हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। पॉजिटिविज्म का मानना यह है कि कोई भी हम थ्योरी बनाया या प्रिंसिपल बनाए तो हर चीज का एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, फैक्ट होना ही चाहिए तो ही हम किसी नॉलेज को वैलिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। तो पॉजिटिविज्म को भी सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए बहुत यूज किया गया। ठीक है, नाउ पॉजिटिविज्म डिनाइज इंट्यूशन। यस Ma'am, fact is generally universal. So in social science also, the fact we collect or the observations which are there needs to be universal in nature. Yeah, most of the facts in social sciences are universal in nature, except a few. Okay, most of the facts are like I gave you an example. Okay, when a person is unfit physically, then he might be anxious in his behavior to all his human relationships or around in his society. So that is a fact, and that is an acceptable fact because we all have observed that, irrespective of in whichever place we live. Okay, so yeah. Oh. As you said, it's right. Fact is an something that is universally accepted. Okay. Now, Yes. this positivism denies intuition. Intuition मतलब क्या होता है? हमको ख्याल आ जाता है कि शायद ये ऐसा है, या फिर हमको वो जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं कि मुझे आज लगा कि ये ऐसा ही होने वाला है। तो पॉजिटिविज्म उन सब चीजों को नहीं मानता है। हाँ, या कैन यू से अगेन? वापस वो बोलो। बोलते हैं ना मैम, सूझबूझ बोलते हैं ना। हाँ, सूझबूझ बोलते हैं, दैट इज बीइंग लाइक यू नो एक्टिव डूइंग समथिंग। इट इज एक्चुअली द इनर वॉइस वेरिन आपको कुछ देखकर ऐसा लगता है कि नहीं इसको इस तरीके से ही होना चाहिए, उस तरीके से करने से ये गलत हो जाएगा। इट्स अ वॉइस दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड विच टेल्स यू कि ये गलत है और ये सही है, या इसको इस तरीके से परफॉर्म करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो पॉजिटिविज्म वो सारी जो इनर वाली थॉट्स हैं, जो जिसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, या एक देयर इज सम फ्लैश ऑफ थॉट्स व्हिच कम्स एंड इग्नाइट्स आवर माइंड, वो सब चीजों को डिनाई करता है, वो सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। पॉजिटिविज्म की एक ही मानना है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तब तक आप किसी चीज को सही बोल नहीं सकते। ठीक है, देन प्रायर रीजनिंग, पहले से कुछ रीजन करके रखा है किसी चीज के बारे में, उसको भी पॉजिटिविज्म नहीं मानता है। थियोलॉजिकल थिंग्स मतलब कि जो विच इज रिलेटेड टू रिलीजन और which is related to the
ओल्ड जो डेटीज हैं, मतलब गॉड के बारे में, कि गॉड एग्जिस्ट करता है और गॉड के होने की वजह से ये सब हो रहा है, वो सारी चीजों को पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स नहीं मानते हैं। उनका कहना एक ही है, प्रूफ लाओ तो हम इस चीज को मानेंगे। ठीक है, तो प्रूफ वाली जो भी चीजें हैं उसको सोशल साइंस डिसिप्लिन का पार्ट बनाया पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स ने। एंड मेटाफिजिकल नॉलेज, ये मेटाफिजिकल नॉलेज मतलब जो हमको दिखता नहीं है, जैसे कुछ लोग गॉड में मानते हैं, वो दिखता नहीं है हमको, क्योंकि दिखता नहीं है इसलिए पॉजिटिविस्ट लोग उसको मानते नहीं है। ठीक है, all scientific knowledge must be based on direct experience of reality, okay, or direct observation is surest way to acquire the scientific knowledge, okay. Now next, positive knowledge is relative, ठीक है। अब positivist knowledge in terms of social science relative है, ठीक है। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि एक फैक्ट कि अगर किसी का फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो शायद एंग्शियसली बिहेव करेगा अपने सारे ह्यूमन रिलेशन के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा भी हो कि वो फिजिकली अनफिट है तो एकदम साइलेंट हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नॉलेज या पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स मानते हैं कुछ सोशल साइंस नॉलेज जो है वो रिलेटिव है, कुछ लोगों के बेसिस पे वो डिफर भी होता है, लेकिन ओवरऑल इट इज सेम। ठीक है, ओवरऑल कोई बीमार पर्सन है तो वो डेफिनेटली चिढ़ के बात करेगा सबसे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ रिलेटिव लोग ऐसे होंगे जो साइलेंट रहेंगे और किसी से कुछ बोलेंगे नहीं या चिढ़ के बात नहीं करेंगे। ओके, so positive knowledge is relative, which means that scientific knowledge is unfinished. यहाँ पे scientific knowledge का मतलब ये नहीं है कि social science का knowledge नहीं है। scientific knowledge का मतलब ये है कि जो हमने proof किया है अलग अलग evidences या observation के basis पे, that is the meaning of scientific knowledge यहाँ, ठीक है। यहाँ पे scientific knowledge का meaning science के laws और principles नहीं है, okay? So means that scientific knowledge is unfinished because there is no absolute knowledge in science. Lastly, science gives a prediction from prediction. यहाँ पे हम social science की बात कर रहे हैं कि जब हम लोगों के पास हम positivist way में social science को लेते हैं तो हमारे पास always there is a chance of prediction. हम आगे future वाले चीजों को predict कर सकते हैं कि ये शायद ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविस्ट जो थ्योरिस्ट है या फिलोसोफर्स है वो प्रिडिक्शन को मानते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन सम इंट्यूशन, जब तक नहीं तब तक वो मानते नहीं है। So Auguste Comte is one of the positivist philosophers. You can read about him on the web and you can find out what else he talked about positivism. Okay. Now, before we go on to the next philosophy, I would like to know from you what you actually as a student of B.Ed, why should you actually know कि भाई positivism क्या है और positivism से social science कैसे develop हुआ, वो जानने की आपको क्या जरूरत है? आप तो स्कूल में टीचिंग करने वाले हैं, आप थोड़ी ना फिलोसफी पढ़ाने वाले हैं। So I want you to give me some ideas of yours. सोशल साइंस कैसे डेवलप हुआ, पॉजिटिविज्म ने उसको कैसे हेल्प किया, वो सब जान के आप क्या करोगे एज अ स्कूल टीचर? टेल मी दैट, बिकॉज यू आर गेटिंग ट्रेन्ड टू बी अ स्कूल टीचर। यस, पॉजिटिविज्म समझ नहीं आया या आप इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते? मैम मे बी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। सो टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो what the theories are based on, like as if we consider science, so most of the theories are based on fact, but in case of, as you told, social science, some of the theories may not be universal, it may apply only on majority people. So so in that way we'll be able to give answer to the children that yes ma'am, maybe in that Okay, what else? प्रॉपर मैम पर्सपेक्टिव हम दे पाएंगे बच्चों को।
That is मतलब जो शोभिता ने बोला, I would like to just add to it कि हम proper Is it perspective Shruti? दे पाएंगे if we'll have the knowledge. Yes, ma'am. Kruti here. Okay. Actually, I've not met you anytime, so it's only through your voice that I identify you that this is so and so and this is so and so. Yeah. Yes, Kruti. So you basically agree with what Shobita is saying. Yeah. Yes, ma'am. Yes. If we'll Okay, have the okay. proper knowledge, then only we'll Yeah, be able good. to. Good. Yeah. So see, basically positivism believes on having evidences and proofs, right? So what implication it has to you as not social science teachers, as teachers is whatever you teach, okay, whatever you teach, you should take care that it is having some evidence, or it is a known fact, it is a proved fact, or it is something not proved fact, sorry, it is a proved knowledge, or it is something which is having good evidences. Okay, so this especially when you are teaching social sciences, you should see there are many, see, when you see the social science textbook which is made by the textbook board, people have been complaining that there have been many mistakes over the years in the book. So what you should do is you should verify the facts, whether it is right or not. Whether you are a science teacher, whether you are a social science teacher, you should find out whether the facts mentioned therein is right or not. And if it is right, then what is the background of it? कैसे वो हुआ? ठीक है, कैसे इस फैक्ट पे आया? अब हर चीज का तो हर चीज जो टेक्स्ट बुक में लिखी है वो तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप एक लॉजिकल कनेक्ट तो दे सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई वॉर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सपोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा रहे हैं, तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ वो शायद टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से ना दिया हुआ हो, लेकिन अगर आपका टीचिंग में पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, तो आप उसके जो रीजंस हैं कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना पड़ा, वो सारे जो चीजें हैं उसको आप लेकर आओगे और फिर एक होलिस्टिक पिक्चर दोगे स्टूडेंट्स को. ठीक है, अगर सिर्फ बोल दिया वो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर had been done in so and so year and it was between these countries, so what is the holistic understanding about it? We should actually tell them that what were the issues and things that arose in that time because of which the war was utmost needed and it was started. ठीक है, तो वो बोलना जरूरी है, लेकिन अगर वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो आपको वो क्या बोलते हैं एविडेंसेस या चीजें गैदर करके वो उन लोगों को बताना चाहिए. ठीक है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स फॉर यू पॉजिटिविज्म पढ़ाने का मतलब मेरा यही है एज अ टीचर. ओके, now coming on to the next one, if you can see, it's naturalism. Okay, this is the next philosophy. अब naturalism क्या है? Scientific method to study all beings and events in the universe as natural beings. Okay, तो अब ये naturalism word आता है nature से, ठीक है. तो अभी जो naturalism वाले philosophers हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ नेचर को ही इम्पोर्टेंट मानते थे और सोचते थे कि जो नेचर बनाता है वही रियलिटी है. ठीक है, ना गॉड एग्जिस्ट करता है, ना कोई देवता एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नेचर एग्जिस्ट करता है. और नेचर मतलब हमारा ह्यूमन नेचर नहीं है, नेचर जो हमको प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जिसने ये प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, जिस हम को बनाया, जिसने फूल पौधे और एनिमल्स को बनाया वो, ओके, या रिसोर्सेज बनाया वो, तो नेचर अलोन इज द रियलिटी, यही बोलता है नेचुरलिज्म. ठीक है, नेचुरलिज्म मानने वाले जो फिलोसोफर्स हैं, जो उसको प्रोपोगेट करते हैं, वो लोग इसको मानते हैं. ठीक है, तो इट बिलीव्स इन मैटर्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है, तो वो भी पॉजिटिविज्म जैसा ही है, जो दिखता है वो सही है. ठीक है, जो नहीं दिखता है वो सही नहीं. जैसे गॉड दिखते नहीं है, लोग मानते हैं गॉड में, लेकिन गॉड दिखता है, वो दिखते नहीं है, इसीलिए वो सही मानते नहीं है. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू, आई होप माय ऑडियो एंड माय स्लाइड्स आर सीन. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, okay. Yes.
ma'am. Like positivist philosophers, naturalist philosophers also did not believe in God. जो दिखता है वही सही है, वही वो लोग मानते थे, ठीक है। पर वो लोग एक कुछ और चीजें भी मानते थे कि साइंटिफिक नॉलेज ऑफ नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमनली क्रिएटेड मीनिंग एंड कल्चर, ठीक है। तो वो ये मानते थे। कुछ लोग जो गॉड पे मानते हैं वो लोग ऐसा, ये हेलो am I in? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Then, so naturalism does not believe in God. Physical and natural principles are supreme and universal. मतलब जो physical principles साइंस ने बनाए हैं और जो natural principles हैं, natural principles कौन से हैं? कोई एक natural principle बताओगे आप? Ma'am, system always try to get in a equilibrium. Yeah, system always try to get in equilibrium. या तो फिर हम ग्रेविटेशन ले ले, वो भी तो नेचुरल प्रिंसिपल है। हम कोई भी चीज को ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगा, क्योंकि अर्थ का अपना क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द नेचुरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो नेचुरलिज्म वाले वही मानते थे, और वो ये मानते थे कि मैन इज गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज। नेचर ने जो लॉज बनाए हैं कि मैन को एग्जिस्ट करने के लिए खाना खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए, इतना पानी है उनके बॉडी में, इसीलिए उनको इतना पानी की और जरूरत है। तो ये सारे जो नेचुरल लॉज हैं उसी से इंसान का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा नेचुरलिस्ट मानते थे। Naturalism, human nature is nothing but it is a mixture of feelings, thinkings, desires, interests, aptitudes, aspirations and instincts, ठीक है। तो जो भी हम लोगों को नेचर ने दिया है, किसी चीज के बारे में फील करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, तो ये सारी चीजें नेचुरलिस्ट फिलोसोफर्स के हिसाब से ऐसा है कि ये सब हमको नेचर ने दिया है और इस सब की वजह से ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। सो माइंड इज नथिंग बट इट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन who controls all our activities, ठीक है। तो कुछ लोग जो गॉड पे मानते हैं या मेटाफिजिकल चीजों पे मानते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो माइंड है वो कुछ मेटाफिजिकल है जो दिखता नहीं है। लेकिन जो नेचुरलिज्म वाले हैं वो फिलोसोफर्स ऐसा मानते हैं कि जो ब्रेन है वो ही सारा कंट्रोल जो ह्यूमन बॉडी का है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। So that is about naturalism. Now, how did naturalism help in development of social sciences? Is that because naturalists believed that human nature is nothing but it is a mixture of feelings, thinking, desires, interests, etc. So slowly, Good afternoon, Jayalakshmi. Yes, who is this? Am I audible? Yeah, who is this? This is Jyotsna. Oh, madam, I did not identify your name. Yeah, your sound. Hi, ma'am. Yes. Hello. I just want to announce one thing. Yeah, ma'am. Please do. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. As sir has discussed with all of you yesterday about the reopening of the department, आपको मैं एक कंसेंट फॉर्म यहाँ चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। यू कैन पोस्ट इट टू योर स्टूडेंट्स ग्रुप, या कोई भी एक स्टूडेंट मुझे सिर्फ व्हाट्सएप में हाई मैसेज भेजो, मैं उस व्हाट्सएप में डाल देती हूँ, सो दैट इट कैन रीच टू योर स्टूडेंट्स ग्रुप। कंसेंट फॉर्म की बात कर रही हूँ, और वो जो कंसेंट फॉर्म है उसको आपको भर के डीन के अकाउंट में वापस भेजना है, ठीक है। आप आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, तो अगर आप बालिग हो, मतलब 18 क्रॉस किया है, एंड इफ यू फील कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तो स्टूडेंट डिक्लेरेशन भरना है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की भी कंसेंट चाहिए, इनफैक्ट मांगी ही है, 2 फॉर्म भेज रही हूं मैं आपको, तो 2 पेज है, वो दोनों भर के सिग्नेचर करके स्कैन करके यू हैव टू रिटर्न इट टू द डीन्स अकाउंट। अगर आप नहीं भेजना चाहते हो अभी, तो जिस दिन आप आओगे उस दिन आप उसको लेके आओगे विदाउट फेल, ठीक है। वेदर यू वांट टू कम फॉर द क्लासेस टू डिपार्टमेंट और नॉट, इसके लिए का कंसेंट है,
हम लोग मंडे से रीओपन कर रहे हैं। आपको कब से आना है वो हम आपको ऐसे ही कभी बताते रहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। यू जस्ट बी अलर्ट। तो ये फॉर्म मैं जो भेज रही हूँ वो किसी भी एक आध स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर का, मुझे हाय भेजो, मैं उसके ऊपर भेज रही हूँ, ठीक है। तो वो 2 फॉर्म है, एक आपका एक आपके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स भी आपको हाँ बोल रहे हैं और आप भी, और आपको लगता है आपका कोई और गार्डियन है तो वो भी, ठीक है। तो वो भर के फिर आप उसको भेज सकते हो डीन एजुकेशन, जिससे हम आपको सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको वो भेज देना है, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Jayalakshmi, sorry to interrupt in between. Have a nice day, all of you. Thank you. Yeah. Okay, so we were talking about naturalism, okay? So naturalism is the study of feelings, thinking, desire, interest. So if we talk of psychology as a field, you know that it is the study of scientific study of how a person is thinking and how he can adapt to his surroundings, right? So जब adapt to his surroundings आएगा तो ये सारी चीजें आएगी कि नहीं? Interest, feeling, aptitude, aspiration. अगर किसी को अडेप्ट होना है सराउंडिंग के साथ तो वो तभी हो सकता है ना जब उसको इंटरेस्ट है, किसी चीज के लिए एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है पॉजिटिव, या किसी चीज के लिए उसको फीलिंग है। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे लगा कि कहीं सब शांत हो गए, तो ठीक है। तो नेचुरलिज्म हैज हेल्प्ड अस टू डेवलप field psychology and sociology as a field of social sciences. Okay, of course at school level you don't teach sociology and psychology unless and until a student takes humanities in 11th and 12th. Okay, otherwise you don't teach that in the till 10th standard, but it is having an implication to you, okay, as school teachers. So can you tell me what is the implication that you can draw from this naturalist philosophy? Anyone? Ma'am, can you repeat the question? Yeah. See, naturalism is basically a study of these feelings, thinking. Okay, naturalist philosophers say that a human being is a mixture of what he is feeling, what he is thinking, what desires he has. And because these naturalist philosophers thought this, we have a subdiscipline of social science which we call as psychology, sociology, etc. Okay, which is dealing with all these aspects. ठीक है। तो क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम पे ऐसा सब सोचा, इसीलिए हम लोग एक नए सब डिसिप्लिन डेवलप कर पाए सोशल साइंस में। लेकिन एज स्कूल टीचर्स आपको नेचुरलिस्ट फिलॉसफी क्या सिखाता है? मतलब हाउ डू यू टेक इट एज अ स्कूल टीचर? आपको क्या काम आने वाला है? Ma'am, as a teacher, we can think that every student have their own point of view regarding any matter. ठीक है, हर इंडिविजुअल का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने थॉट्स हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। यस, व्हाट एल्स इन टर्म्स ऑफ सोशल साइंस, इफ यू कैन से समथिंग व्हेन यू आर टीचिंग सोशल साइंस, उसमें कुछ इवन लैंग्वेजेस में भी, जब लैंग्वेज सीखते हैं तभी भी देखो, तुमने लैंग्वेजेस में देखा होगा कि कोई भी पोइट्री होती है उसमें स्टार्ट होता है वो पोएट के इंट्रोडक्शन के वो लोग कब जन्मे थे, वो लोग कौन सी जगह पे रहते थे, उन लोग का डेथ कब हुआ था, अगर आपको याद हो तो आपके स्कूल डेज। यस मैम। हाँ मैम। और सोशल साइंसेस जब हम पढ़ते हैं तो सोशल साइंसेस में भी हम लोगों के पास अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे हिस्ट्री में झांसी की रानी है, ठीक है, या तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर है सिविक्स में। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स है ना, ये जो है ये लोग क्यों इतने ऊपर आए, या फिर हम लोग जब सिखाते हैं उनको झांसी का जो वॉर है वो सिखाते हैं, तो एक्चुअली इट इज नॉट ओनली टीचिंग देम झांसी का वॉर, इट इज ऑल्सो टेलिंग देम दैट हाउ डिटरमाइंड एंड हाउ करेजियस वाज झांसी की रानी। वो कितनी करेजियस थी कि उसके हस्बैंड नहीं थे, फिर भी उसने अपने जो किंगडम था उसके लिए उसने खुद से लड़ाई की, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमें उनको बतानी है. दैट इज हैविंग अ नेचुरलिस्ट अप्रोच टू इट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पढ़ाने का मतलब ये तो है ही कि सोशल साइंस नेचुरलिस्ट फिलोसोफर्स की वजह से कैसे डेवलप हुआ. दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये भी है कि एज स्कूल टीचर्स आप यहाँ से क्या टेक अवे करते हैं, क्या ले जाएंगे, क्यों पढ़ोगे ये. ठीक है, तो ये इसीलिए पढ़ोगे कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप इस तरीके से समझाओ बच्चों को कि वो लोग कैसे थिंक करते थे, वो लोग कैसे फील करते थे, वो लोग के क्या इंटरेस्ट थे उस टाइम पे कि उन लोगों ने ये पोएट बने या वो लोग ये सोशल वर्कर्स बने या पॉलिटिशियंस बने, इस टाइप से. तो ये जो पर्सपेक्टिव होता है पढ़ाने का वो भी आपके अंदर एज अ टीचर होना चाहिए. ओके, देन यू आर अ true social scientist or a true teacher as such. Okay, so now coming on to the next philosophy, that is realism. I'll complete realism and then we'll break for the day. Is it fine for you? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Because we Okay, have ma'am. very limited period in this semester and then we have to run through the syllabus. Okay, so let us come to realism. अब realism word आता है real से. ठीक है, तो realism वाले जो philosophers हैं, दो philosophers उसमें मेन है. एक है जॉन लॉक, LOCKE, और दूसरा है इमैनुअल कैंट, CANT है उनका, इमैनुअल कैंट एंड जॉन लॉक. तो ये दोनों ऐसा मानते थे कि जो साइंटिफिक थ्योरीज है ना वो सब तब तक राइट है जब तक वो ऐसा मानते थे कि हम जो किसी चीज के बारे में सोचते हैं और जो चीज एक्चुअल में होती है वो अलग अलग होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोभिता को देख के ये सोचूं कि ओ शी इज सच ए नाइस गर्ल, शी इज वेरी प्लेजेंट, शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल, ये सारे मेरे थॉट्स हैं. ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर दूसरों के साथ जब मैं ऑब्जर्व करूंगी तो अगर वो डिफरेंट हुआ देन इट इज सो डिफरेंट कि मैंने जो सोचा और जो दिख रहा है वो टोटली डिफरेंट है. ठीक है, तो रियलिज्म वाले ये मानते थे कि जो दिखता है और जो हम उस चीज के बारे में या इंसान के बारे में सोचते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है. इसीलिए हमें अगर कोई भी सोशल साइंस डिसिप्लिन या सोशल साइंस लॉज या थ्योरीज बनानी है तो हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमेशा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए. ओके, तो रियलिज्म भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविज्म के जैसा ही है कि जब तक प्रूफ नहीं है तब तक किसी थ्योरी को आप सच मान नहीं सकते. ठीक है, सो रियलिज्म इज सोशली एंड इंडिविजुअली यूजफुल थिंग्स आर लर्नड वेल, विद दैट लर्निंग दे कैन एक्ट इन देयर रिलेशनशिप. ठीक है, जो चीज इंडिविजुअली एक्सपीरियंस की गई है या इंडिविजुअली फील किया गया है या किसी सराउंडिंग वाले से एक्सपीरियंस किया गया है वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे से सीखते हैं. ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन रियलिज्म वाले जो फिलोसोफर्स थे वो एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा बोलते थे. वो बोलते थे कोई भी नॉलेज है वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होना चाहिए और एप्लीकेशन टू लाइफ होना चाहिए. ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि इट शुड हैव अ थ्रस्ट अपॉन प्रेजेंट लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. जो भी हम सिखाए, सोशल साइंस में सिखाए, साइंस में सिखाए, लैंग्वेजेस में सिखाए, जो भी हम सिखाए वो उनके प्रेजेंट लाइफ से रिलेट होना चाहिए. ठीक है, अब देखो तुम लोगों को मैं ये जो फिलोसफीज पढ़ा रही हूँ उसको मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि ये जो फिलोसफीज है उसके मीनिंग ये है और वो जो फिलोसफीज है उससे सोशल साइंस डेवलप हुआ है. लेकिन मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव भी दे रही हूँ कि रियलिज्म जानने की वजह से आपको क्या फायदा होगा एज अ स्कूल टीचर. ठीक है, तो आई एम कनेक्टिंग द नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू. Actually, I have to just tell you that naturalism, positivism, realism has helped in development of social science as a discipline. बस मुझे आपको इतना ही समझा, लेकिन मैं आपको ये भी समझा रही हूँ कि अगर रियलिज्म आपने एज एन अप्रोच यूज किया या आप एक रियलिस्टिक टीचर बने तो आप क्या कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता रही हूँ. बिकॉज इट शुड हैव सम मीनिंग फॉर योर लाइफ ऑल्सो और for your learning also. ठीक है, इसीलिए so it had lot of thrust upon present life of the individual. okay, तो realism basically is जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है उसी को सही मानना है. जो हम दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते हैं किसी चीज के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में उसको सही मानना नहीं है. ठीक है,
तो रियलिज्म फॉर अ टीचर, एज अ टीचर, तो ये जो रियलिस्टिक फिलोसोफर्स थे जो इस तरीके से सोचते थे, उनकी वजह से क्या हुआ कि जो सोशल साइंस का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से थ्योरीज बनाने लगे। अदरवाइज हम शायद थ्योरी नहीं बनाते सोशल साइंस में। हम लोगों ने बहुत सारे सोशल साइंस के थ्योरीज इसीलिए बनाए क्योंकि रियलिस्टिक फिलोसोफर्स ये मानते थे कि जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन से एविडेंसेस नहीं है, तब तक हम किसी थ्योरी को सही मान सकते नहीं है। ठीक है, इसीलिए सोशल साइंस के एज अ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए रियलिस्टिक फिलोसोफर्स या रियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ठीक है, ओके। नाउ द टेक अवे फॉर यू एज टीचर्स, तुम्हें क्यों रियलिज्म से तुम्हें क्या फायदा होगा? रियलिज्म से ये तो पता चल गया कि रियलिज्म की रियलिस्टिक फिलोसोफर्स या रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन डेवलप हुआ है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक टीचर हैं या रियलिज्म प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमेशा कोई भी चीज का एविडेंसेस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ढूंढकर पढ़ाएंगे, जिससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और दूसरी बात है, आप कोई भी टॉपिक सिखाएंगे तो वो उनके लाइफ के लिए, स्टूडेंट के लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सोचकर पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो जो टॉपिक है वो स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, हमको कोई भी चीज इंटरेस्टिंग कब लगती है? जब हमको पता चलता है कि उसका फायदा मेरी लाइफ में भी है। ठीक है, तो जब हम कोई भी टॉपिक को इस टाइप से स्टूडेंट के लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएंगे, उनके प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करके, तो दैट लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी acceptable by the students, and they like to learn it more and more and like to read more and more. And as a teacher also you will be excelling in your teaching learning process. Okay, so that is all what I wanted to tell you today. I think that's all. You have a class after this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I hope this is not going out of your head. मतलब बहुत ज्यादा theoretical नहीं हो रहा है. I'm trying my best कि मैं आपके साथ relate करके पढ़ाऊँ, because you all have come from different disciplines. कोई science है, कोई social science से आया है, कोई language humanities से आया है. तो this is something new for you. तो I'm just trying to link it up. So you can always tell me, stop me wherever you feel कि ये बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में समझ नहीं आ रहा है क्या है. मैं अपने हिसाब से सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं आप उसको कितना ले पा रहे हैं. तो always let me know, okay, if I am going somewhere I am not relating it to your senses. Okay, कुछ कहना है आपको? रियलिज्म में एक चीज ऐड कर सकते हैं, मतलब एक है कि जो दिखता है वो होता नहीं. हाँ, Yes, बोलो ma'am. मरियम. हाँ. जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है. यस, राइट. रियलिज्म का मेन प्रिंसिपल ही वही है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है. ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग दैट रियलिज्म या रियलिस्टिक फिलोसोफर्स प्रैक्टिस करते हैं. मैम, इन अ स्कूल इट इज टॉट टू द स्टूडेंट लाइक दैट कि कोई स्टूडेंट होता है उसके ऊपर ऐसा लग जाता है आरोप कि ये लड़का ये ऑलवेज चोरी करता है, बट जब आप पोस्टमार्टम करते हो तब आपको पता चलता है कि उसने नहीं की होती है. आप उसको नहीं मैम, ऐसा होता है कि कोई एक बॉय है उसके ऊपर ऐसा नाम आरोप रख दिया होता है कि ये करता है, ये करता है, ये करता है. बट एज अ टीचर यू जब कोई चीज चोरी होती है और आप फिर फाइंड करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं भी होता है. तो एक मेंटालिटी कोई भी चाइल्ड के ऊपर, ये तो सिर्फ एक चोरी की एग्जांपल था, बट लाइकवाइज बहुत सारे एग्जांपल है, तो ये नहीं करना चाहिए. या ओके मरियम, तो नेक्स्ट क्लास है आपका, तो वील ब्रेक फॉर द डे. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. यस मैम, डन. Okay then, bye. It was nice teaching you. Thank you, ma'am. Yeah. Bye, ma'am. Bye. Thank you, आपने मैम आपने अटेंडेंस ले ली क्या?